Hi students, welcome to my YouTube channel of Seema Classes. Today we are going to see the 12th standard lesson which we have started last time. So the name of the lesson is Inheritance and Variation, and this is the part 2. In the first part 1, what we have studied, that is what is inheritance and different terms which we are using in inheritance. Okay, so today we are going to start monohybrid cross. Now ये monohybrid cross का जो topic है ये 12th standard के लिए एज वेल एज ये 9th स्टैंडर्ड के लिए भी यूजफुल है. नाउ व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? नाउ इफ यू लुक एट दिस वर्ड मोनोहाइब्रिड, मोनो मीन्स व्हाट? मोनो मीन्स सिंगल, हाइब्रिड मीन्स कॉम्बिनेशन. तो जिसमें सिंगल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है वो प्लांट को बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ओके, सो विल सी द डेफिनेशन. व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? अ क्रॉस बिटवीन parents differing in only one contrasting character. Contrasting मतलब opposite character is called monohybrid cross. मतलब वो प्लांट में एक opposite character मतलब two different characters के plants लिए उनको क्रॉस ब्रीडिंग करके जो नया प्लांट हुआ, that cross is called monohybrid cross. So many experiments has done in the pea plant. The scientific name of the pea plant is Pisum sativum. So Mendel has selected the pea plant. जो हम लोग को मालूम है कि who is the pioneer? That is Mendel. Mendel has performed lots of experiments in the pea plant. लेकिन ऐसे सवाल आता है कि why he has selected the pea plant? Reason is here. He has selected the pea plant because pea plant has 7 pairs of contrasting characters. 7 pairs of contrasting characters होने के वजह से he has selected the pea plant. So which are the 7 pairs? First is the seed shape. Next is the seed color, pod shape, pod color, flower location, plant height. Okay, तो seed shape में भी कौन से दो contrasting character है? एक है round seed shape, wrinkled है, seed color में है yellow, green, pod shape में है inflated, constricted, pod color में है green, yellow, flower color में आता है purple and white, flower location में आता है axial and terminal, plant height में आता है tall and dwarf plant. Okay, so one more term over here, that is dominant and recessive. मैंने ये फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था. डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब वो कैरेक्टर वो हमेशा एक्सप्रेस होता है. तो जब भी डोमिनेंट कैरेक्टर है और रिसेसिव कैरेक्टर है तो डोमिनेंट कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करेगा. रिसेसिव कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस तब तक नहीं करता जब तक उसके साथ डोमिनेंट जीन एब्सेंट ना हो. मतलब अगर डोमिनेंट और रिसेसिव है तो डोमिनेंट जीन ही एक्सप्रेस होगा. मतलब कोई गैमेट है उसमें राउंड सीड शेप है, राउंड के गैमेट्स है और रिंकल के गैमेट्स है, लेकिन वो उसके जो सीड का शेप रहेगा वो राउंड ही रहेगा. लेकिन रिसेसिव कभी एक्सप्रेस करेगा जब भी डोमिनेंट कैरेक्टर एब्सेंट होगा. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड. वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब मेंडल हैज परफॉर्म, मैंने बोला कि मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे. तो हियर वी हैव टेकन सी first here what we have seen, there are 7 different types of contrasting characters. So here we are taking the example of plant height. तो plant का contrasting character है tall and dwarf. इसमें से जो tall है वो dominant character है and short या dwarf है that is the recessive character है. Mendel selected tall and dwarf garden pea plants, that is Pisum sativum, for the experiment. So here we'll see how the crossing take place. A cross between pure tall plant and pure dwarf plant. Pure means here if you look at the gametes, दोनों gametes same है, so it is a pure. Tall है क्योंकि ये dominant character इसमें है, इसके लिए plant tall है. Next आता है pure dwarf. Pure again both the gametes are same. Dwarf because here the recessive gametes are present, dominant character यहाँ absent है, इसके लिए प्लांट रिसेसिव है. मैंने क्या कहा था कि जब भी डोमिनेंट गैमेट्स एब्सेंट रहेंगे तभी वो रिसेसिव कैरेक्टर अब खुद को एक्सप्रेस करेगा. ओके, नाउ विल सी द एग्जांपल. फिनोटाइपिकली मेंडल हैज टेकन 1 टॉल प्लांट एंड 1 डॉर्फ प्लांट. अभी टॉल प्लांट का जीनोटाइप देखेंगे, दैट इज कैपिटल T एंड कैपिटल T, दैट इज प्योर होमोजाइगस. अगेन होमोजाइगस मीन्स बोथ द गैमेट्स आर सेम, देन इट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस. तो प्योर प्लांट जो था उसका कॉम्बिनेशन जीनोटाइप था कैपिटल टी. डॉफ जो था उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन था स्मॉल टी.
वो है प्योर, अगेन इट इज अ प्योर होमोजाइगस बिकॉज बोथ द गैमेट्स आर सेम। अभी इसका गैमेट हुआ कैपिटल टी, इसका गैमेट आया कैपिटल टी, डॉफ का गैमेट आया स्मॉल टी, उनका कॉम्बिनेशन हुआ या उनका क्रॉस ब्रीडिंग हुआ, तो जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन मिली, फर्स्ट जनरेशन जो प्लांट की मिली, उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी था, लेकिन ये प्लांट टॉल था। वाई टॉल? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर दैट इज कैपिटल टी। तो कैपिटल टी गैमेट प्रेजेंट था, it is a dominant character, therefore the plant will be tall, but genetically it is a hybrid heterozygous. Okay, hybrid जैसे मैंने कहा कि it is a combination of two different varieties, और hetero क्यों? क्योंकि इसके गैमेट्स डिफरेंट है। यहाँ हम लोग ने पढ़ा था, ये देखो कैपिटल टी था, इसके लिए ये होमोजाइगस था, ये स्मॉल टी था, ये भी होमोजाइगस था क्योंकि उनके दोनों भी गैमेट्स सेम थे। यहाँ उसके गैमेट्स डिफर है, अलग अलग है, इसके लिए इट इज अ हेट्रोजाइगस। होप यू हैव अंडरस्टूड। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग इन शॉर्ट। We have selected the tall plant and the dwarf plant. The genotype of the tall plant is capital T, while the genotype of the small plant or the dwarf plant is small t. The gametes is a tall plant is a capital T. The gamete of the dwarf plant is a small t. And in the first filial generation, capital T small t genetic combination is there, where the plant is tall, but it is a hybrid heterozygous. ओके हमें इसके बाद क्या किया, ये जो F1 जनरेशन मिला था, फर्स्ट फिलियल जनरेशन मिला था, उसका फिर से क्रॉसिंग ओवर किया उसके ही प्लांट के साथ, दैट इज कॉल्ड सेल्फिंग ऑफ F1। ओके, तो F1 हाइब्रिड में हम लोग को क्या मिला था, एक हाइब्रिड टॉल मिला था। हाइब्रिड टॉल मतलब क्या, वो प्लांट टॉल था लेकिन उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन हेट्रोजाइगस था, तो उसका ही क्रॉसिंग ओवर किया फिर से वही जनरेशन के प्लांट के साथ। सो हाइब्रिड टॉल is crossover with hybrid tall, and both is having heterozygous combination. तो phenotypically एक टॉल था, दिखने में दोनों भी प्लांट्स टॉल थे, लेकिन जीनोटाइप इसका कैपिटल टी स्मॉल टी था क्योंकि ये हाइब्रिड प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी था। दूसरे का भी जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी था। तो हम लोग को फोर गैमेट्स मिले, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी ये फर्स्ट जनरेशन था, अभी सेकेंड सेल्फिंग करने के बाद जो सेकेंड जनरेशन मिली, तो सेकेंड जनरेशन में मेल गैमेट मिला कैपिटल टी स्मॉल टी एंड फीमेल गैमेट्स मिले कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसको हम लोग ना चेकर बोर्ड में डाले तो कैपिटल टी हियर यू विल गेट कैपिटल टी, हियर यू विल गेट कैपिटल टी स्मॉल टी, हियर कैपिटल टी स्मॉल टी, हियर स्मॉल टी। तो कैपिटल टी both are dominant characters, the plant is tall. Here कैपिटल टी स्मॉल टी एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, एक रिसेसिव कैरेक्टर है, लेकिन मैंने जैसे कहा था जब भी डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है तो वो खुद को एक्सप्रेस करता है, द प्लांट विल बी टॉल प्लांट। नाउ हियर इफ यू look here, the capital T small t, again a dominant character is present, therefore the plant is tall. Here your dominant character is absent, कैपिटल टी नहीं है, इसके लिए स्मॉल टी क्या करेगा, खुद को एक्सप्रेस करेगा, therefore the plant will be dwarf plant. So we'll see the phenotypic ratio. phenotypic में क्या पढ़ते हैं हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में देखा था एक्सटर्नल कैरेक्टर। तो एक्सटर्नली प्लांट टॉल या डॉफ है, दो ही कंडीशन है, प्लांट टॉल रहेगा या डॉफ रहेगा। तो सेकेंड फिलियल जनरेशन में कितने टॉल प्लांट्स मिले, 1 2 3, तो 3 प्लांट्स टॉल मिले, एक प्लांट डॉफ मिल गया। जीनोटिपिक रेशियो मतलब जीन्स, उनके गैमेट्स, तो गैमेट्स में कैपिटल टी गैमेट है, कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट है और स्मॉल टी गैमेट है। तो हाउ मेनी टॉल प्लांट्स जीनोटिपिकली कैपिटल कॉम्बिनेशन इज देयर, ओनली 1 प्लांट। कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन इज ऑफ 2 प्लांट्स and small t combination is of 1 plant. Okay, hope you have understood. Now if you like my video, so this is about the monohybrid cross. If you like my video, please like it, share it, subscribe it and press the bell icon so that whenever I'll put the videos you'll get the notification. Thank you.